Hello, Assalamu alaikum and welcome to another edition of the Pavilion. मैं हूं Fakhar-e-Alam, आप देख रहे हैं Sports 10 Sports and the ARY Zap app. Our continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023 from India. Another big day today because there's a big clash coming up. उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे, मगर सबसे पहले Pavilion में मेरे साथ मौजूद जो मेहमान हैं उनसे आप लोगों का तारुफ करवा दूं. I've got 4 former Pakistani captains, 4 outstanding minds of the game of cricket. They've been analysing games with us and have been sharing their experiences with us. I've got the young, dynamic, one of the finest fielders of the Pakistani team, captain Pakistan proudly. I've got Shoaib Malik. Shoaib, good afternoon and assalamu alaikum. Good afternoon, walaikum salam, assalamu alaikum everyone. आप ठीक हैं? मिस्टर डिपेंडेबल, जब हर तरफ विकेटें गिर रही होती थी तो ये एक एंड संभाले रहते थे हर वक्त. पाकिस्तान के सबसे कामयाब टेस्ट कप्तान पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट की तारीख के. आई गॉट मिसबाह मिसबाह, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून. वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. With that, I've got 8 टेढ़ी उंगलियां, 2 सीधे अंगूठे, हम सब की जान पहचान, Silver Fox of the Pavilion, also captain Pakistan proudly, one of the finest wicket keepers and a great runner between the wickets. I've got Moin Khan. Moin, assalamu alaikum and good afternoon. जी वालेकुम अस्सलाम, good afternoon, अस्सलाम वालेकुम everyone. And with that, the cricket royalty in the house, ladies and gentlemen, I bring to you the Sultan of Swing, the undisputed king of all-rounders, and like always, looking shiny, bright and minty this morning, Wasim Akram. Assalamu alaikum and good afternoon, Wasim. Good afternoon, everyone, and assalamu alaikum, everyone. कल भी आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप का बड़ा दिन था. कल 2 मुकाबले थे. सबसे पहला मैच जो कल आप लोगों ने लखनऊ से देखा वो था नेदरलैंड्स बा मुकाबला श्रीलंका. ये मैच समरी आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आते हैं. नेदरलैंड्स ने पहले बैटिंग की, 262 रन बनाए और श्रीलंका ने ये चेस डाउन किया 48.2 ओवर्स में. इट वाज ऑल राउंड अ गुड एफर्ट बाय नेदरलैंड्स क्योंकि उनका शुरू में कोलैप्स हुआ था टॉप ऑर्डर, बट देन द मिडिल ऑर्डर बॉट देम बैक एंड गॉट देम दैट रिस्पेक्टेबिलिटी. श्रीलंका विनिंग दिस वन बाय 5 विकेट्स. उसके बाद दूसरा बड़ा मुकाबला मुंबई में हुआ. सबने कहा ये बहुत बड़े टाकरा होगा, लेकिन ये बिल्कुल वन साइडेड अफेयर रहा. साउथ अफ्रीका decimated England in every department. 399. England winning the toss, putting South Africa into bat, and they lost by 229 runs. That's a colossal defeat. That's huge. But look at that. Look at how South Africa must be very happy looking at that scorecard. And with that, आइए नजर डालते हैं पॉइंट टेबल पे. सूरत हाल क्या है पॉइंट टेबल पे? ये रहा पॉइंट टेबल आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर. That's New Zealand sitting right on top with the best net run rate, but 8 points. India trailing right behind with 8 points, but 1.66 net run rate. And today these two are going to be taking on each other. But look at that. You've got South Africa climbing up to the 3rd spot, Australia to the 4th spot, and pushing Pakistan down to the 5th spot. Bangladesh, Netherlands, Sri Lanka are down, and defending champions England, well, they are in a lot of trouble. And Afghanistan right at the bottom, and the top 4 teams will go into the semi-finals. ये सूरत हाल है. और आज कौन सा खेल है, क्या मुकाबला है, ये आप लोग की स्क्रीन के ऊपर लेकर आ रहे हैं. This is the match ident coming up. It is the table toppers clashing each other. India versus New Zealand in Dharamshala. 1:30 बजे बराह रास्त आपकी खिदमत में लेकर आएंगे. This is going to be a fantastic game of cricket because you can see 2 top-tier teams who are looking phenomenal in every department of the game coming face to face today. Wasim, let me bring this conversation to you. दोनों टीमें, all bases covered. This is going to be a great game. Absolutely. Top teams of this World Cup so far हमने देखा मैचेस में चारों मैच जीते हुए हैं, कन्विंसिंगली जीते हुए हैं. और कमिंग बैक टू न्यूजीलैंड, दे हैवंट लॉस्ट World Cup game against India for last 20 years. I think last they lost to India was 2003 World Cup in South Africa. So yeah, that's also will be behind them. उनके mind में होगा New Zealand के, they'll be more confident. They're playing at Dharamshala. It literally is the clash of the titans. You know, 2 top teams. शुरू में लोगों ने कहा था इंडिया फेवरेट है. न्यूजीलैंड हर दफ़ा हर वर्ल्ड कप में आईसीसी इवेंट में ये आ जाते हैं और इस दफ़ा इनकी टीम पूरी प्रॉपरली बैलेंस है. सो विल बी अ ग्रेट गेम टुडे. मोइन, दोनों अनडिफीटेड टीम्स हैं अभी तक इस वर्ल्ड कप के अंदर. सो बोथ ऑफ देम अनडिफीटेड कमिंग इन. वन ऑफ देम इज गोइंग टू बी डिफीटेड एट द एंड ऑफ द डे. कितना कॉन्फिडेंस को हिट मिलेगी इनमें से अगर कोई भी टीम हारती है तो? मेरा नहीं ख्याल है कि इतनी कोई प्रॉब्लम होगी बिकॉज के ऑलरेडी 4 मैचेस तो जीते हुए हैं यहाँ पे. एक आधा अगर मैच हार भी जाते हैं, नेचुरली इतने बड़े कॉन्टेस्ट के अंदर कोई ना कोई टीम ऐसी होती है जो आपसे टकराती है, जो बड़ी टीम होती है, अच्छा टेक ऑफ किया हुआ होता है. बट उसका ये मतलब नहीं है कभी भी कि आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पे लूज़ हो जाए. आई थिंक
एक ज़रूर बड़ा मैच है, जो भी जीतेगा उसको भी कॉन्फिडेंस मिलने के बहुत ज़्यादा और ज़्यादा चांसेस है, बिकॉज इंडिया न्यूजीलैंड दोनों बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट, बड़ी पॉजिटिव क्रिकेट खेल रहे हैं, ईजिली कन्विंसिंगली मैचेस जीते एज वसीम भाई डिस्क्राइब। तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा सेटबैक कोई होगा किसी के हारने पे, क्योंकि आगे जो मैचेस पड़े उनके पास और चांसेस। आई थिंक क्लियरली इन दोनों टीमों का नज़र आ रहा है इस वक्त, एक एक मैच भी ये जीतते हैं या 2 मैच भी इनको जो अगले 4 मैचेस रहते हैं तो इजीली क्वालिफाई कर लेंगे फॉर द फर्स्ट 4. Right. Misbah, a challenge for Rohit Sharma and Rahul Dravid because Pandya is out of this game. So who fills the void? ज़ाहिर है नंबर 6 पे बैटिंग करते हैं वो, एक बैटर उनको खिलाना पड़ेगा और मुझे लगता है शायद सूर्य कुमार यादव, क्योंकि नंबर 6 पे बैटिंग आपको इस किस्म का प्लेयर चाहिए जो पांड्या के रोल को आके फिल इन कर सके। बहुत बड़ा मिस होगा उनके लिए, जो बैलेंस था उनकी टीम का, 4 आपके पास पेसर होते थे, बैटिंग भी पूरी होती थी, वो उस तरीके से नहीं होगा। बट स्टिल आई थिंक इंडिया के पास फिर भी ऑप्शंस हैं। सूर्य कुमार यादव अच्छी फॉर्म, सूर्य कुमार यादव इंस्टेड ऑफ पांड्या, सो इट मींस दे गो विद 5 बॉलर्स, सो दे डोंट हैव द ऑप्शन ऑफ द 6th वन। देन शार्दुल ठाकुर, मुझे लगता है कि जो उनको एक ऑलराउंडर के तौर पे वो देखते हैं, हो सकता है उनकी जगह वो जो मोस्ट लाइकली शामी को डालें ताकि पूरे बिल्कुल 3 बॉलर हों उनके पास, 2 स्पिनर, पूरे 5 बॉलर हों और पूरे 6 बैट्समैन और जडेजा नंबर 7 पे फिर बैटिंग करेगा। तो ये लगता है कि थोड़ी बहुत इनको कहीं ना कहीं वो हिट होगा बैलेंस टीम का, बट इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो चीज़ इनकी क्लिक कर रही है, वो इंडिया की ओवरऑल जो मैच होगा, क्लिनिकल परफॉर्मेंसेस हैं, बहुत प्लान्ड खेल रही है इंडिया भी। न्यूजीलैंड 4 मैच जीती है मिसबाह, एंड गाइस दे वन चेजिंग all 4 of them. So if they bat first, it'll be a different kind of territory कि कितना करना है, कितना स्कोर करना है, क्या करना है। It depends. बट मेरा ज़ाती ख्याल ये है, जैसे मिसबा ने भी बात की है कि वो बैटिंग बढ़ाएंगे। बैटिंग तो ऑलरेडी बहुत आउटस्टैंडिंग फॉर्म में अभी तक पूरे टूर्नामेंट में कोई उसमें बहुत ही विकेटें कम गिरी है। मुझे लगता है यहाँ पे अश्विन को आज हो सकता है कि वो खिलाएं। अच्छा शोएब, लेट्स टॉक अबाउट धर्मशाला नाउ। दिस ट्रेंट बोल्ट का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि वी वुड दिस इज परफेक्ट प्लेस टू प्ले अगेंस्ट इंडिया। दे फील वेरी कॉन्फिडेंट कि अगर हमने इंडिया से मैच खेलना ही था तो यही जगह हम प्रेफर करते और यहीं पे मैच हो रहा है। व्हाट डज दैट मीन? आई मीन व्हाई डज द न्यूजीलैंड कैंप फील दैट दे हैव अ लिटिल बिट ऑफ एडवांटेज हियर? उसमें यह है कि जो इस वेन्यू पे मैचेस हुए हैं रिलेटिवली वो हाई स्कोरिंग नहीं हुए, तो हो सकता है इस वजह से, और यहाँ पे बॉलर्स को जो है हेल्प मिलती है। बट आई गेस इंडिया वाले भी यही सोच रहे होंगे कि आ जाओ। और यहाँ पे जो स्टैट्स हैं, यू नो, अफगानिस्तान ने 156, फिर उसके बाद 364, देन 245। यू राइट के इट्स नॉट लाइक फ्लैट डेक। हाँ, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो है बैटिंग वर्सेस बैटिंग होगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे बॉलिंग वर्सेस बॉलिंग भी हो सकता है, क्योंकि ये जो ऐसा वेन्यू है जो हम लोगों ने देखा है, जहाँ पे साउथ अफ्रीकन इतनी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप ने भी स्ट्रगल किया, तो यहाँ पे ऑफर करते हैं, ये वेन्यू ऑफर करता है बॉलर्स के लिए भी। बट यहाँ पे विराट कोहली और रोहित शर्मा के अगर स्टैट्स देखते बोल्ड, तो मुझे नहीं लगता ऐसी स्टेटमेंट देते। That's interesting point. We'll discuss more about that. Weather in Dharamshala, it's 18 degrees Celsius, so ठंड है वहाँ पर, and it's time to take a break. We'll see you on the other side. Welcome back to the Pavilion. I'm Fakhar-e-Alam. आप देख रहे हैं Sports and Sports and the ARY's app. Our continued coverage of the ICC Men's World Cup. Today we're taking you to Dharamsala where the 2 table toppers, undefeated teams of this World Cup, New Zealand and India, are going to clash, and it's going to be a great game of cricket. Shoaib Malik, break पे जाने से पहले बात कर रहे थे हम वेन्यू के हवाले से, तो आपने कहा कि अगर ट्रेंट बोल्ट स्टैट्स देख लेते विराट कोहली के और रोहित शर्मा के इस ग्राउंड में, तो शायद वो ये ना बोलते। This is going to be interesting. Is this going to be New Zealand bowling versus the Indian batting, or is it going to be just bowling versus bowling, as Shoaib was pointing out earlier? It kind of both. दोनों टीमों की बैटिंग भी स्ट्रॉन्ग है, बॉलिंग भी स्ट्रॉन्ग है। 2 स्पिनर उधर हैं, 2 स्पिनर इधर हैं, 3 फास्ट बॉलर उधर हैं। अब डिपेंड करते हैं इंडियन प्लेइंग 11 का खिलाती है। अभी हम ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे कि they probably play a batter and then 5 proper regular bowlers instead of the 6th bowler they don't have, so they have to go with 5. और किसी एक का बुरा दिन होता है तो they have to deal with it. एक चीज़ है वसीम भाई, उसमें मोइन भाई कह रहे थे ब्रेक में अश्विन को खिला लें,
हार्दिक पांड्या की जगह, एक बैटर कम हो जाएगा। मिसबा भाई ये कह रहे थे कि आप नहीं खेल सकते, विकेट कीपर अगर आपका ऑलरेडी फर्स्ट 6 में है तो आप इतनी कम बैटिंग के साथ नहीं खेल सकते। हाँ, मोइन भाई वाली बात ये समझ आती है कि आज के पर्टिकुलर मैच में क्योंकि बहुत सारे लेफ्टीज़ हैं न्यूजीलैंड की टीम में, इनफैक्ट पहले 7 में से मेरा हाल में 4 या 5 जो हैं वो लेफ्टीज़ हैं। सो मोइन भाई वाली बात भी सही है, कम बैटिंग के साथ भी। अब जो दूसरी जो फोर्स्ड चेंज आती है वो शार्दुल ठाकुर की आती है, क्योंकि उनको अगर वो 6 बैटर से खेल रहे हैं तो उनको 5 प्रॉपर बॉलर्स चाहिए, क्योंकि शार्दुल यू कांट एक्सपेक्ट बॉलिंग 10 ओवर्स अगेंस्ट गुड बैटिंग लाइनअप। तो ये एक चीज़ है जिसमें आई एम श्योर उनका थिंक टैंक बैठा होगा और वो अभी देख लेते हैं। Okay, we've got a feature for you here. Let's well, there you have it. Really nice pack. Let's talk about the Indian batting. Misbah, गिल का बड़ा ज़बरदस्त ODI रिकॉर्ड है न्यूजीलैंड के खिलाफ, खास तौर पे 80 रन की एवरेज से इनके खिलाफ स्कोर करते रहे 8 मैचेस के अंदर। बड़ी ज़बरदस्त इनकी परफॉर्मेंस रही है, 484 runs in 8 games against न्यूजीलैंड। He likes their bowling, I guess. And he is in good nick. हमें सबको पता है कि वो पहले मैचेस नहीं खेले, लेकिन प्रीवियस मैच में जिस तरह की बैटिंग की है और वो टच गया नहीं है, जिस किस्म के शॉट्स खेल रहे हैं, मिडल कर रहे हैं बॉल को, ही विल बी कॉन्फिडेंट एंड इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं इनके लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर के अगेंस्ट। आप देखें बांग्लादेश के अगेंस्ट भी जो ऑन ड्राइव्स मारी हैं और स्पिनर को जिस तरीके से एग्रेसिव खेलते हैं, वो एक अच्छा मैचअप भी होगा इंडिया के लिए कि सैंडनर को कैसे खेलते हैं, ये बोल्ड को ऊपर से कैसे खेलते हैं। तो इम्पोर्टेंट प्लेयर होंगे इंडिया के लिए रोहित शर्मा के साथ। जिस किस्म के स्टार्ट्स ये देते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेशर गेम जब टॉप टीम के साथ आप खेलते हैं, स्टार्ट अच्छा मिलता है तो फिर आपकी टीम की जो बैटिंग है वो विराट कोहली और नीचे जितने भी उनके बैट्समैन आते हैं उनके लिए बहुत बड़ा मौका होता है कैश करने। Wasim, a lot of grit and determination in Gill because बीमार थे और सीरियस बीमारी थी डेंगू से, रिकवर करके रिकवरी भी बड़ी तेजी से उन्होंने की है, and then the commitment that he's shown, got straight into the game and got into the game and fielded 50 overs. Right, yes. I mean he's physically very fit. एक तो young है, एक physically बड़ा fit है, mentally भी बड़ा strong है, and coming back to his cricket, he's got a proper technique. He's a good test player, good T20 player, and of course we've seen uski recent form in ODI cricket in Asia Cup and here. So yeah, he's a complete player and a treat to watch. Yeah. He controls the game. He's young, but he doesn't दिखाता नहीं है when he goes out to bat. It's like you say he controls the game. I wanted to ask you, Rohit Sharma controls the game, Virat Kohli controls the game, Gill controls the game. ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਗੇਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਟਿੰਗ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੋਚੋ ਜ਼ਰਾ। ਵਿਕਰਮ ਰਾਠੌੜ। Well, he's sitting outside. Let's talk about the middle overs for India. Their spinners have done really well. Even अगर के oppositions को अच्छा और बड़ा aggressive start मिल भी जाए, तो both Jadeja and Kuldeep have this knack of pulling back that start and pulling back the opposition and slowing things down. Well, दोनों तरफ से ही ऐसी है। अगर आप न्यूजीलैंड की भी बॉलिंग देखें तो वहाँ पे सैंटनर, फर्गूसन है अगेंस्ट द टॉप ऑर्डर, जितनी भी इस वक्त इन फॉर्म बैटिंग है इंडिया के खिलाफ। तो इसी तरह आई थिंक मैच अब दोनों को मुझे ऐसा लग रहा है कि बराबर लग रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा इस वेन्यू के हवाले से अगर हम देखें तो फास्ट बॉलर्स ने यहाँ पे विकेटें ली हैं, 33 विकेटें ली हैं अभी आउट ऑफ 4 मैचेस। तो न्यूजीलैंड की अगर आप कंपेयर करेंगे बॉलिंग, आई थिंक वो बेटर लगती है मुझे, स्पेशली मिडल में जिस वक्त फर्गूसन फर्स्ट चेंज के ऊपर आते हैं एंड देन सैंटनर आते हैं, दोनों ने काफ़ी विकेटें ली और पिछले 2 मैचेस के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट किया है। तो यहाँ जेन्युइन पेस के खिलाफ आज इंडिया का असल टेस्ट होगा इन द मिडल ऑफ द ओवर्स के, जहाँ पे फर्गूसन और सैंटनर को जो टॉप क्वालिटी बॉलर्स हैं, तो वो देखना होगा कि किस तरह खेलते हैं। हमने पूरे टूर्नामेंट में देखा बहुत एग्रेसिव इंडियन बैट्समैन ने खेला, जहाँ मौका मिला है वहाँ पे प्रेशर को रिलीज़ किया है बाउंड्री से। अभी तक लोअर ऑर्डर की बैटिंग नहीं आई इंडिया की, एक्सपोज नहीं हुई। अगर टॉप ऑर्डर आउट हो जाते हैं यहाँ पे तो नेक्स्ट एक बहुत बड़ा प्रेशर पड़ेगा इस मैच में। And coming back to the question about the Indian spinners, both of them, Kuldeep and जडेजा, अभी तक 4 मैचों में दोनों ने मिला के 90 से ज़्यादा रन्स नहीं दिए। आई मीन जो भी अभी मैचेस खेलने, 85 in 20 overs against Bangladesh, 73 in 19.5 overs against Pakistan, 78 in 18 overs against Afghanistan, and 70 in 20 against Australia. That shows the consistency of both these spinners and how important they are in the middle overs. एक तो विकेट लेते हैं और ऊपर से रन रोकते हैं।
and that adds extra pressure. That's how the fielding team creates pressure in the mid over, not to give easy singles, and they both are very good at it. और एक चीज़ और है वसीम भाई, ये होती है होम कंडीशंस को यूटिलाइज करना, अच्छे से करना, कंसिस्टेंटली करना और पूरा होमवर्क करके आना। जो हमने कुलदीप यादव का देखा था जब वो हमारे साउथ शकील को उन्होंने पूरा होमवर्क किया कि कहाँ पे ये थोड़ा हल्का खेलते हैं स्पिनर को, तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वसीम भाई सेड। बट आज जितने लेफ्टी हैं ऑफ स्पिनर डालना ही पड़ेगा। ओके, एक्सप्लेन। I have to take a break, but before that, explain. I think मैचअप बहुत अच्छा होगा और जो अगर इंडिया को मैच जीतना है तो जैसे इंडियन बैटर्स को आउट करना है रोकने के लिए, न्यूजीलैंड के बैटर्स को भी रोकना पड़ेगा, और वो एक ही सूरत है आउट करके, और ऑफ स्पिनर इज गोइंग टू बी अ गुड मैचअप अगेंस्ट न्यूजीलैंड। आई हैवंट सीन देम अगेंस्ट द मिस्ट्री स्पिनर्स एज येट, बट जितना इंडिया में खेलते हैं इंप्रूव हो गए होंगे वो। बिल्कुल, कॉनवे ने तो मेरे ख्याल में बड़े रन्स बनाए हैं आईपीएल में yes, और कॉनवे खेला भी जिस वेन्यू पे वहाँ पे मोस्टली टर्न होता है बॉल, और कोई मैच नहीं हारे हुए, अच्छी फॉर्म में भी हैं उनके बैटर्स जो हैं न्यूजीलैंड वाले। लेकिन एक चीज़ का मैच पड़ सकता है, वो ये हो सकता है अगर न्यूजीलैंड ने इंडिया को हराना है। जो न्यूजीलैंड की बैटिंग है, साउथ अफ्रीका की बैटिंग है, वो पहले से लेके 7 तक अच्छी फॉर्म में है। यहाँ ऊपर वाले बहुत ज़्यादा टेस्टेड हुए हैं इंडिया के, मिडिल वाले उस तरह नहीं हुए। तो अगर ऊपर वाले 1-2 गए जल्दी तो it's going to be a great battle between two top teams in the World Cup. Yep, it is going to be a great battle, and we're going to show you that battle live right here on A Sports, 10 Sports and the ARY Zap app. But right now, we're going to take a break. We'll see you on the other side. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं Fakhar-e-Alam. आप देख रहे हैं A Sports, 10 Sports and the ARY Zap app. And today in the ICC Men's World Cup, we're taking you to Dharamsala where India is going to clash with New Zealand. याद रहे कि दोनों टीमें undefeated हैं अभी तक इस World Cup के अंदर, and both of them right on top of the table as well. This game is going to be very interesting. Let me bring this conversation to you, Moin. Now, आप चूंकि इतने highlighter को इस्तेमाल कर रहे हैं, इतनी details नहीं, ये खराब हो गया, दूसरा मंगवा के दे पहले। आप मेरा ये सब ये ले लें सर, ये आपने उसका रंग ही उड़ गया, ये देखें, ये येलो से काला हो गया आगे से। उस्ताद पता क्या करता है, सुबह हाजिरी नहीं लगाता, प्रेजेंट के नहीं है। ये देखिए मोइन भाई ने सवेरे सवेरे हाजिरी लाई दी, कौन स्टूडेंट आया था कौन नहीं आया था, देखो काटा। वापस आ जाए प्रोग्राम प्लीज। ये वैसे क्या नोट्स आप मोइन, टेल अस द ये जो मेथड बिहाइंड दिस मैच। ये जो स्टैट्स आते हैं 10 पेजों के, ये तो नहीं पढ़ सकता आदमी। कुछ लोग पढ़ लेते हैं, कुछ लोग कुछ लोग पॉइंट आउट, कुछ लोग सारे लोग पढ़ लेते हैं। मैं क्या तुसी ओदों पढ़ना सीखना तो ਜਦੋਂ मुक जाएगा वर्ल्ड कप वो तक सीख लेगा। तो बंदा हाईलाइट करता है, जो डिस्कशन पॉइंट्स होते हैं उसको हाईलाइट कर लेता है आदमी। अच्छा, इधर ना जब आते हैं ना स्टैट तो मोइन भाई सब पे ना चट लगाते हैं, एक आधा बज जाए ना स्टैट, अच्छा जो बोलता जाए ना तो उधर क्रॉस लगाते, जैसे क्रॉस लगाते जाए जो एक बज जाए ना, एक खत्म हो जाता है तो क्रॉस लगा देते हैं, उसमें खत्म हो गई बात। All right, we were talking about the Indian cricket team, right? Well, there you have Suryakumar Yadav looking really, really good and confident team. Shoaib, all of them? Yes, very confident. Won all their games, so of course confidence तो इस वक्त बहुत हाई होगा उनका। और उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की कि प्रोएक्टिव होना चाहिए आपको। नाउ आई थिंक ही इज़ गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी, और उन्होंने देखा कि मैं किस नंबर पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो मैं उस टाइप की प्रैक्टिस करूं। ऑफ कोर्स ही इज़ डन रियली वेल, जो उन्होंने बोला भी इन T20 फॉर्मेट, एंड दिस इज़ द फॉर्मेट विच ही रियली वांट्स टू डू वेल एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट एन अपॉर्चुनिटी। तो उसमें यह है कि ही इज़ रेडी। परफॉर्म होना ना होना बात की बात है, बट ही इज़ प्रोएक्टिव, और यही चीज़ होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि व्हाट टीम डिमांड्स फ्रॉम मी। और ये है कि T20 में उन्होंने करके दिखाया, ये एक ऐसा फॉर्मेट है कि जहाँ पे आज टीम को उनकी ज़रूरत पड़ गई है। Yeah, should be really good. Live images आपके सामने थी स्क्रीन के ऊपर। Let's talk about the New Zealand side now in this batting. Conway has been really special this World Cup, Wasim. Averaging in the 80s with a 100+ strike rate and momentum in his favor. Momentum दोनों टीमों की फेवर में है। Conway is a very good player. He's a lefty as well. He opens the innings. He is the best player जो न्यूजीलैंड साइड में है against spin bowling, so he can able to tackle both the spinners in the mid overs if he stays that long.
but beautiful player to watch, good technique, and of course उसको ये भी पता है कि किस मौके पे मैंने तेज़ होना है, किस मौके पे मैंने स्ट्राइक रोटेट करनी है. He's got the pull shot, equally good straight, and then of course like I said the spinner के खिलाफ he's one of the best TV batter, no doubt, and I think in general he's a match winner all in all. और Misbah Conway with Rachan Ravindra on the other side, it makes a very good combination. मेरे ख्याल में बहुत, मैंने पहले भी बात की, प्लानिंग से उन्होंने पूरी टीम ये पूरा इस पे होमवर्क किया है कि इंडिया में अगर हमने वर्ल्ड कप खेलना है और सारी कंडीशंस में अगर हमने बेहतर करना है तो हमने उसी को जहन में रखते हुए टीम बनानी है. इवन विल यंग को देखें, ही इज़ प्लेइंग सो वेल अगेंस्ट स्पेन, यूजिंग फीट, वो क्रीज की डेप्थ को भी यूज़ कर रहे हैं, बैक फुट पे जाके कट शॉट, पुल शॉट, निकल के सामने मारते हुए डरते नहीं है. सामने जो ये हिटें मार रहे हैं नॉर्मली इंडियन प्लेयर्स ऐसा खेलते हैं, तो ही इज़ इक्वली गुड अगेंस्ट क्विकर बॉलर्स. और स्पिनर्स को देखें, स्क्वेयर ऑफ द विकेट भी अच्छा खेलते हैं, डाउन द ग्राउंड ये शॉट हैं जो हम बार बार बात करते हैं कि अगर स्पिनर पे आपने प्रेशर डालना है तो आपको क्रीज से निकलना ही पड़ेगा, आपको वो लेंथ्स क्रिएट करनी पड़ेंगी, तब ये स्पिनर आपको शॉर्ट बॉल करता है और आपको स्क्वेयर ऑफ द विकेट रन्स मिलते हैं. इवन अ क्वालिटी बॉलर लाइक राशिद खान, वो एग्रेसिव थे, कॉन्फिडेंट थे, अपनी शॉट्स खेल रहे थे, उनको अंडर प्रेशर कर रहे थे. तो जितने भी इनके प्लेयर हैं, कॉनवे हैं, रविंद्रा है, उसके बाद ये बड़ा ज़बरदस्त खेल रहे हैं, तो ये पूरा एक पूरी बैटिंग लाइनअप है. दे आर गुड ऑन any type of bowling. Does this batting lineup miss Williamson? And when you talk about, you know, backup players in your squad, जी, वो प्लेयर ऐसे होना चाहिए जैसे यू नो ये लड़का विल यंग जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसने बिल्कुल केन विलियमसन की कमी महसूस मैं ये कह रहा था कि वो एज अ बैटर वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर, न्यूजीलैंड कैप्टन, इन गुड निक, बट दैट्स व्हाट यू नो इट्स ऑल अबाउट. ये जो आप रखते हैं कि ये अगर अनफिट हुआ तो मैं इसको खिलाऊंगा, ये अनफिट हुआ, और ये प्लानिंग करना इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, इट्स रियली नॉट. इट्स नॉट और 50 बना के, आप कल देखिए 50 बना के कैप्टन वापस आया साइड में और वो बाहर बैठा, उसने 50 बनाई हुई थी. सो सेक्रीफाइस भी करना और मुंह पे हमेशा स्माइल रखना और टीम का गोल सामने रखना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू प्लेइंग अ टीम गेम. उस दिन मोइन से हम दोनों डिस्कस कर रहे थे कि यू नो क्रिकेट में इस स्पोर्ट में स्पेशली जब चिप्स आर डाउन, एंड दैट्स वेयर आई थिंक द स्किपर्स बॉडी लैंग्वेज कम्स इन. कप्तान की लड़के सारे बॉडी लैंग्वेज को देखते हैं, अगर वो थोड़ा नेगेटिव है and then it rubs into every player on the field and playing 11. So it's so important कि when chips are down, I'm not saying smile and कह के मारो, but it should be positive body language, belief. जो प्रोएक्टिव एज अ टीम बात मलिक ने भी की है, वो बड़ा ज़रूरी है कि आपको पता है कि ये सवाल आने हैं, हमने जवाब पहले उनके ढूंढने, ये नहीं कि देख लेंगे. हम कन्वेंशनल प्रैक्टिस कर रहे हैं और फिर जाके वहाँ पे जब फंसते हैं तो फिर मुश्किल हो जाती है. स्पिनर्स को हर बॉलर के अगेंस्ट आपने बड़ा अच्छा पोजीशन बात की. अब बुमा भी कल जो थे वो नहीं थे, एंड यू नो लुक हाउ द टीम, वो तो एक्चुअली ब्लेसिंग इन डिसगाइज होगी ना उसके लिए इन अ वे. बुमा इज इन गुड निक, बट अगेन जो हेंड्रिक्स खेला है कल, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. बट लुक एट द बेंच स्ट्रेंथ, कि आपकी टेस्टेड ट्राइड बेंच स्ट्रेंथ मौजूद है जब आप इतने बड़े टूर्नामेंट के लिए जा रहे हैं. हम बात कर रहे थे न्यूजीलैंड के बैटर्स की, तो हमने बात की, बट सैंटनर यू नो हैज हिस्टोरिकली बीन वेरी वेरी सक्सेसफुल अगेंस्ट इंडिया in the middle overs especially, and we've got him with us right now. Let's listen in. Yep, all the best to both the teams actually. And with that, we're going to take a break right here on the Pavilion. But when we come back, there's more on the other side. Don't go away. Keep watching A Sports, Sen Sports, and the ARY Zap app. Well, there you have the pitch report. Wasim, your favorite subject. pitch report पता क्या थी? ऐसे थी ये pitch report ऐसे. आप खुद डिसाइड करो. मिसबा दोबारा ये जरा मिसबा का सिंगल शॉट पे दोबारा बताइएगा कैसी थी ये pitch report? मिसबा चलो डिसीजन करो. वो जामनू वाला भी है, हार्ड भी है. I love it. बहुत ज़्यादा. इससे क्या पता लगता है? ये pitch report जो हम देख रहे हैं, जो मोस्ट कमेंटेटर्स मेरे दोस्त हैं सारे को, यू नो वर्कर्स हैं, कोलीग्स हैं, मोस्टली कप्तानी नहीं की इन्होंने. राइट. सो
that shows that every cricketer doesn't know how to read a pitch. Or sometimes commentators, जब हम कर रहे होते हैं, you're so busy, the last thing on your mind is you literally go and check the pitch closely, and that's why most of the time we go generic. Swing भी होएगा, turn भी होएगा, बैटिंग पहले कोई रन भी होएगा, उसकी वजह से इस तरह की पिचेस रिपोर्ट आ रही हैं जो सैलाब की वजह से, सैलाब कह लें उसको लेकिन ड्यू जहन में जब भी होता है तो वो खुद जो पिच रिपोर्ट दे रहा होता है वो इंडिसाइसिव होता है कि मैं क्या सजेस्ट करूं या फिर क्या करें। पिच नजर आ रही है, ये वो साउंड भी सुना रहा है हमें कि पिच बहुत हार्ड है, नजर आ रही है। 4000 मील दूर बैठे तो अच्छी लग रही है। अच्छा, हार्ड भी है, यहाँ पे बाउंस भी अच्छा होता है और स्लो भी है। बल्ले पे गेंद अच्छा आएगा, चेज भी हो सकता है, चेज भी हो सकता है क्योंकि ड्यू गिरेगी। ये पिच रिपोर्ट कम लगती है, ऐसे लगता है कोई पुराना टीवी बेचने आ गया है उसकी ना चीजें बतानी है सारी कि उसके अंदर वो इट लुक्स लाइक अ गुड पिच फ्रॉम फोर्थ एज वसीम वुड से 4000 मील दूर से लगते अच्छी रही है अभी पता नहीं आगे जनरली जो लुक नजर आ रही है जब करीब से दिखाया तो वो अच्छी लग रही है, बैटिंग पिच लग रही है। वेल इफ दिस इज मगर ये डीके ने जो पिच रिपोर्ट किया, दिनेश कार्तिक ने ट्वीट भी किया अभी एक्स पे, व्हाट यू कॉल इट, पहले ट्वीट करते थे, अब इस पे क्या करेंगे हम? X/X you have X किया, I have X'd, I have X'd. All right, I stick to the old one. उसने अपने उस पे लिखा है पिच की तस्वीर के साथ कि it's gonna be a slow pitch. वहाँ पिच रिपोर्ट ने सारा कुछ बता दिया। हार्ड पिच है, यानी इवन होगी लेकिन पेस ज्यादा नहीं होगी पिच पे। ऐसा की मतलब है यार मिसबा, प्लीज यार सिंपल लफ्जों में बॉल तेज नहीं जाएगा जैसे सिंपल लफ्जों में बताऊं, ये दोनों टीमों के लिए एक जैसा पिच होगा, दोनों टीमों की सीधा ना उनका मतलब ये है कि माइन पिच भी आ जा बात आ रहे पिच भी आ जा बात आ रहे। Well, if it looks like a batting pitch as Misbah says, but if it's a batting pitch, then you know you have the likes of Rohit Sharma and Virat are going to really love it. रोहित शर्मा की बात कर रहे थे, उनका वैसे भी स्टैट बड़ा अच्छा है इस ग्राउंड में। अभी अगर इंटरव्यू लेना ट्रेंट बोल्ट से शायद वो चेंज कर दे, लेकिन अच्छा मैचअप है ट्रेंट बोल्ट का। रोहित शर्मा को अगर अर्ली ऑन अंदर बॉल आए तो के इंटरव्यू में आपको व्यू तो मिल गया ना, उसने कहा कि वी गॉट सम टर्निंग पिचेस बट दिस लुक्स वेरी फ्लैट। इंडिया भी अगर बैटिंग करता है स्ट्राइक रेट देखने आप रोहित शर्मा का ओडीआई इसका वो पहले 10 ओवरों के अंदर, सो 2015 से 2019 का स्ट्राइक रेट देखें और फिर देखें कितना बड़ा उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन किया 2020 से 2023 That's a lot. देखें ना आप देखें नीचे वाला देखें 2015 से 19 तक वो है सिर्फ इनका 75.81 and if you go from 20 to 23 it's 106.28. That's a lot in one day cricket. इतनी अपना स्ट्राइक रेट को इतना ऊपर ले जाना। इसमें वसीम भाई जनरल जो बात होती दिस इज रोहित शर्मा वर्सेस पेसर्स इन द पावर प्ले इन दिस वर्ल्ड कप। जी मिसबा, जो जनरली एक बात होती थी कि ये पहले थोड़ा सा इन होते हैं, रीबिल्ड मतलब एक किस्म का सेटल डाउन होते हैं और फिर अटैक करते हैं। इंडियन जो टॉप ऑर्डर था उस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आना शुरू हो गया था जब ये वर्ल्ड कप्स में बाहर हुए हैं। एंड देन जब रोहित शर्मा आए हैं कप्तान बने तो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि वी वांट टू चेंज दिस, हम अब ऊपर से ही अटैक करेंगे और वी वांट टू प्ले पॉजिटिव क्रिकेट और इम्पैक्ट शुरू से ही हमने डालना है। एंड देन एज अ प्रॉपर जिसको हम कहते हैं जेन्युइन लीडर खुद उन्होंने इनिशिएटिव लिया और स्टार्ट में ही आके जिस तरीके से वो खेलते हैं टोन सेट करते हैं पूरी टीम के लिए, दिस इज़ द वे नाउ, ऐसे हम खेलेंगे और इस तरीके से हमने खेलने जाना है। तो वो एक क्लियर डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है अभी वो जिस तरह खेलते हैं। राइट फ्रॉम द फर्स्ट बॉल आप देखेंगे वो अटैक करते हैं और अगली टीम को सेटल डाउन का मौका। मिसबाह इंडिया को मौका भी नहीं मिला पहले बैटिंग करने का, अगर टॉस जीत के आज बैटिंग करती है, अभी तक तो चेज की और 42.3 एवरेज उनका है कि वो चेज ही करेंगे। आज भी चेज आपने कहा बताया, उसने बताया कि ड्यू फैक्टर आएगा यहाँ शाम को। इसलिए मैं कह रहा था कि अभी तक इंडिया ने वैसे बैटिंग नहीं की है तो इंडिया टेस्ट भी हो सकती है पहले बैटिंग करके, तो आई थिंक वो मेरा नहीं ख्याल है कि उनके इस वक्त ये इंटेंशन होगी कि टॉस जीत के हम यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट करें। जी क्रेडिट देना चाहिए इंडियन बैटर्स को, इंडियन थिंक टैंक को, स्पेशली कैप्टन को, कि बाकी टीम्स में देखें वो कॉम्बिनेशन बनाते हैं, 1-2 ऑलराउंडर्स डालते हैं ताकि वो 7-8 तक बैटिंग जाए। इस बैटिंग लाइनअप पे वो नहीं करते, इन पे रिलाई करते हैं वो 2 ओपनर्स विराट कोहली एंड केएल राहुल और हार्दिक पांड्या, अगर उनको ज़रूरत पड़े तो 4 रिसोर्सेज के साथ वो चेस करने जाते हैं। आई थिंक हैट्स ऑफ टू देम। एब्सोल्युटली। और आपने केएल राहुल का नाम दिया, वी गॉट अ फीचर ऑन हिम, लेट्स
And that was KL Rahul. With that, we're going to take a break right here in the Pavilion. But when we come back, we're getting closer to the action. Don't go away. Keep watching. All right. Welcome back to the Pavilion. I'm Fakhar-e-Alam. Aap dekh rahe hain Sports and Sports in the Hourwise app. We are getting close to the action in Dharamshala, where India is going to clash with New Zealand. Now, both of them are table toppers. Both of them are undefeated. And both of them are looking really, really good. Ji, Shoaib, aapko पेन नवी बिल्डिंग बन गई है, पेन नल है देख। उसमें स्याही खत्म हो गई इसलिए यार अभी मैंने आपको नया वाला दिया मार्कर, आप कह रहे हैं उसमें स्याही खत्म हो गई है। चूस रहे हो। यार चेक तो कराएं। चले यार काम करें काम ही कर रहा था बीच में वो तो ये शैतानियां करता है। ये देखे ना, चले यार आप सवाल करें, छोड़े। हमारी जगह चट लगा ली हुई है ना, ये मुझे में दिखाए ना। भाई बच्चे जो ढेले मारेंगे, कोई भी जब गुस्सा आता था ना, अब जवानी की बात कर रहे हैं, अब तो ठंडा हो गया है, अब तो घर वालों ने ठंडा कर दिया। तो जब छोटे थे, जब पाकिस्तान टीम से खेल रहे थे, तो ये ढेले निकाल देता था एकदम। कैसे भाई सो व्हाट की गल है, इजी सीरियस हो जाता है। हाँ वो कुछ लोग होते हैं, उनका डिफेंस मैकेनिज्म ही होता है ना कि मैं बहुत सो व्हाट। अच्छा मजे की बात ये सबसे बड़े ऑब्जर्वर टीम के अंदर ही है। ऑब्जर्वर बिल्कुल ऐसे ही हर चीज ऑब्जर्व कर लेते हैं 1 मिनट के अंदर, और उसी चीज से ना फिर उस प्लेयर के साथ खेलते हैं। जैसे मेरा गुस्सा था, मुझे कह के ठंडा कर दिया। नहीं हर बात पे कोई ऐसी बात हो, आपने पहले पूछा ही नहीं, जास्ते हर बात कोई ऐसी बात लड़ पाएगा। Just let's take a look at the head-to-head count for India versus New Zealand. दोनों का जो वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड है उसके ऊपर जरा नजर डाल लेते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आते हैं। This is the head-to-head count. इंडिया न्यूजीलैंड के मुकाबले वर्ल्ड कप के अंदर 8 मुकाबले हुए हैं, न्यूजीलैंड ने 5 जीते हैं, इंडिया ने 3 जीते हैं। So here clearly New Zealand has the advantage. But remember, this is the home ground for India. These stats are really good for cricket lovers and us guys who live on stats, but that doesn't matter. Last World Cup 2019 में हुआ था. I can understand New Zealand ज़्यादा मैच जीता हो, but it depends कि आज के दिन कौन सी team is mentally stronger, physically better, and in good nick. Both the teams are in very good form. That's what. So this makes this a very exciting game of cricket to watch. Oh yeah, one of the best games. One of the best, no but doubt. I'm also little. कहते हैं ना कंसर्न, क्योंकि कल जो मैच हुआ है इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का, हम सोच रहे थे वो भी बड़ा ही कुछ टाकरे का मुकाबला होगा और बड़ा एंड तक जाएगा, आखिरी ओवर तक जाएगा। बिल्कुल ही वन साइडेड अफेयर रहा मिसबा। सिर्फ कल का नहीं, सारे मैचेस ही हम सोच रहे हैं कि टीमें बराबर की हैं, मैच अच्छा होगा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो रहा। कंप्लीटली हर गेम में एक टीम दूसरे को डोमिनेट कर रही है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि टॉसेस, हम कह रहे हैं जी ड्यू फैक्टर है, ये है वो है, टॉस इम्पोर्टेंट होगा, लेकिन जो टॉस जीत रहा है बेचारा वही फंस रहा है। ज़्यादातर टीमें वही मुसीबत में फंस रही हैं, और टॉस जो है वो कोई एडवांटेज की बजाय डिसएडवांटेज बनता जा रहा है। और जो 20 में से 16 मैच हुए हैं, जिन कप्तानों ने टॉस जीते हैं वो हारे हैं मैच। और वैसे भी अगर ड्यू फैक्टर को आप मद्देनजर रखते हुए टॉस जीत के पहले बॉलिंग कर भी रहे हैं, तो उसकी एटलीस्ट यूटिलाइजेशन कर लें अर्ली और ना विकेट्स दें, ताकि आप कोई भी टारगेट आप जो है अचीव कर सकते हैं। लेकिन पहले जो बैटिंग करते हैं वो 350 बना लेते हैं। अब आप अगर पहले 20 ओवर ड्यू फैक्टर नहीं है, आपके 1-2 आउट हो गए हैं, टॉस के बाद बाकी बात। Alright, it's time to flip with Samsung over to Dharamshala. राइट जी, धर्मशाला से खबर, इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, व्हिच मींस दे आर गोइंग टू बी चेसिंग। द न्यूजीलैंड कैप्टन सेइंग कि अगर वो टॉस जीतते तो वो भी बॉलिंग करते। दिस डज दैट मेक अ ह्यूज डिफरेंस नाउ? अब टॉस आपके कंट्रोल में नहीं है। ऑब्वियसली दोनों टीमें चाहती थी कि पहले बॉलिंग करें। इंडिया वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू फील्ड, एंड ऑफ कोर्स एट दिस लेवल जो ये दो टीमें जिस तरीके से वर्ल्ड कप से खेल रही हैं, अब न्यूजीलैंड टॉस हारी है, it wasn't in their control. Now they're going to pile up runs and put pressure on Indian batting when they come out to bat. And of course for that एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, पता होगा न्यूजीलैंड टीम को कि इंडिया इज ओनली गोइंग फॉर 5 स्पेशलिस्ट बॉलर्स। अगर किसी एक बॉलर का दिन बुरा हुआ तो दे हैव नो वन टू गो टू। और लेफ्ट हैंडर जडेजा बॉलिंग करेंगे, अगर इनका कोई भी लेफ्ट हैंडर उस टाइम पे सेटल होगा तो ये एक ऐसा मैचअप हो सकता है जहाँ पे उसको कैपिटलाइज कर सकती है न्यूजीलैंड की टीम।
Yeah, and Shoaib, what kind of target would New Zealand have in mind to set for India? Because India's chasing is incredible. Ideally क्या होना चाहिए? सेंटनर का इंटरव्यू के बाद उसने कहा कि आज का पिच जो है बड़ा फ्लैट डेक लग रहा है। देखिए 350 तो होना चाहिए अगेंस्ट इंडियन बैटिंग लाइनअप। 350 जो है वो होना चाहिए एंड देन देयर विल बी अ गुड कॉन्टेस्ट। Yeah, then it will be. For the Indian bowlers, they will come out and go about their business like they do, or will they have a different strategy here today? मोइन, मेरा ख्याल रिस्ट्रिक्ट तो करना पड़ेगा क्योंकि इंडिया इस वक्त यहाँ पे बॉलिंग कर रही है। 5 बॉलर्स के साथ जैसे वसीम भाई ने मेंशन किया खेल रहे, दे गॉट टू बी ऑन टारगेट। सबको सारे बॉलर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आज मिली है। हार्दिक नहीं खेल रहे हैं यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन लेवल हाई रखना पड़ेगा। क्योंकि वी गॉट द प्लेइंग 11s इन। ये पहले न्यूजीलैंड की टीम है। मिसबा, टेक अस थ्रू प्लीज। जी अनचेंज टीम है। लास्ट गेम में भी यही टीम खेली है। बड़ा ज़बरदस्त कम्बिनेशन है। दोनों ओपनर अच्छी फॉर्म में, नंबर 3 भी अच्छी फॉर्म में, रविंद्रा एंड देन मिचेल इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। लेथम, फिलिप्स पिछले मैच में ज़बरदस्त बैटिंग की है। तो लेट्स सी, आई मीन दे आर प्लेइंग रियली वेल। और एक उनका पक्का कम्बिनेशन है जो खेल रहा है। It's all about execution now, how they go about one of the top team, जो कि most favorite team के against खेल रहे हैं। Wasim, India, 2 changes. Yeah, 2 changes in Indian side. Opening, of course, both the batters are doing really well, and so is the number 3, one of the best in the world. Iyer at 4, and then Rahul at 5. जो नया लड़का डाला आज पांड्या की जगह, Sky जिसे कहते हैं, सूर्य कुमार यादव, जडेजा, and then of course 3 fast bowlers and spinners. Sami is in as well. So yeah, 3 fast bowlers, 2 proper spinners. It'll be fun. Yeah, this is going to be quite a contest. What kind of matchups are you looking at with these 2 changes, Shoaib? आई गेस कुलदीप यादव उनको आज ऑफ स्पिनर वैसे भी बॉल बाहर निकलता है लेफ्टी, तो वो अच्छा मैचअप है अगेंस्ट लेफ्टीज। बट ठीक है, लेफ्ट आर्म स्पिनर नॉर्मली कोई भी कैप्टन नहीं चाहता कि वो उसको एक्सपोज करे अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर्स, बट हमने देखा है जडेजा बोल्ड वेल अगेंस्ट लेफ्टीज एज वेल। बट अर्ली ऑन जो है बुमराह, ही इज़ बीन इन ग्रेट निक। सिराज जो है ठीक है, थोड़े से एक्सपेंसिव रहे हैं इस वर्ल्ड कप में, बट स्टिल वो कोई ना कोई स्ट्राइक दे देते हैं। सो आई गेस जैसे वसीम भाई ने कहा 5 बॉलर्स हैं, शायद विराट कोहली आज थोड़े से 1-2 ओवर्स कर दें बीच में आगे, क्योंकि जरूरत जरूर पड़ेगी। इसका मतलब समथिंग इज रॉन्ग, वन बॉलर इज गोइंग टू गेट हैमर्ड। नहीं, वैसे भी अगर 2 नए बैटर्स हैं क्रीज पे, तो 1-2 ओवर जरूर करा लेने चाहिए। कोई इंजर्ड भी हो सकता है, तो वो ये ना हो कि बाद में जो है बड़ा प्रॉब्लम हो। तो जहाँ पे भी इजी सिचुएशन हो, जहाँ पे लगे इंडियन कैप्टन को कि यार यहाँ पे वो नहीं आ रहे आफ्टर आवर बॉलर्स, तो फिर वहाँ पे 1-2 ओवर्स, 2-3 ओवर्स का जो है वो करवा सकते हैं। उन्होंने 3 बॉलें आके विराट ने की थी, तो मैं भी सही बात है, अगर आप बीच में कहीं भी पिटाई हो रही है तो आप एक ऐसा अनयूजुअल जो बॉलर हमारा पार्ट टाइम बॉलर होता है उसको यूज कर सकते हैं, ऑफ स्पिन टाइप। All right, with that we're going to take a break right here in the pavilion. When we come back, we are closer to the action, so don't go away. Keep watching A Sports, 10 Sports and the Airwise app. Welcome back to the pavilion. मैं हूं फखर-ए-आलम, आप देख रहे हैं A Sports, 10 Sports and the Airwise app. धर्मशाला से खबर यह है कि इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। न्यूजीलैंड is going to be setting up a target. India will be chasing. With me in the pavilion, I've got Shoaib Malik, Misbah, Moin Khan and Wasim Akram. और मैं ये सोच रहा हूँ कि अब मैं प्रोड्यूसर से गुजारिश करूँ कि ब्रेक के दौरान भी जो है वो कैमरा ऑन रखा करें, क्योंकि सारी डिस्कशन जो है वसीम वो आप लोग तो ब्रेक में मैं नहीं, मिसबा एंड मोइन, आप लोग सारी डिस्कशन ब्रेक में कर लेते हैं। नहीं तो आप ऑन एयर कर ले वाली डिस्कशन आप करें जो भी आप कर रहे थे। जने आप सवाल करें। नहीं, मैं सवाल नहीं करूँ ना, आप लोग जो डिस्कशन कर रहे थे। आपकी क्यूरीज होती है ना, हमारी कोई क्यूरी, हमें पता है क्या होने वाला है। क्या होने वाला है? चलें 10 फिर तू 10 मैच होने वाला है, मैच होने वाला, तो आपको पता है। इजाजत चले जनाब। With that, it's time for Palmolive Natural Expert Predictions. All right, let's start off. Shoaib Malik. India. Moin. मैं पहले ही कह चुका हूँ जी, इंडिया पहले कदों क्या आई राती किन्नू है भी दस दियो फिर अपने बीवी नु चले। इंडिया फेवरेट्स मिसबा न्यूजीलैंड। चलो फिर वो ऐसी पुठे पासे टोर पहन ले। न्यूजीलैंड। वाह जी वाह। All right, and there are your expert predictions brought to you by Palmolive Natural. And time for the player to watch out for, brought to you by Ufone. All right, Misbah, player to watch out for you. Darren Mitchell. Mitchell? All right. Shubman Gill. Mr. Gill. All right. Wait.
विराट कोहली, काटा ला लें पहले। विराट कोहली, विराट कोहली, शोएब मलिक, केएल राहुल, केएल राहुल। All the batters. All the batters. Interesting. पिच देख ली है, पिच रिपोर्ट देख और ली यार है। रोहित शर्मा का मेरा नहीं ख्याल है किसी ने नाम लिया जी, है ना? नहीं दिया। Good. All right. Well, that's your play to watch out for, brought to you by YouPhone. Interesting. Favorites में वसीम, शोएब, मोइन, आप तीनों ने इंडिया बोला है. Why do you think India has an edge in this game? I suppose they won so far 4 games in this World Cup chasing, and they won the toss. They elected to bowl, and they are in their comfort kind of zone. They know कि यहाँ पे कैसे होता है और फिर रात को थोड़ी ड्यू भी पड़नी है. And pitch looks quite good as well. ठीक है, अगर वो 300 भी करते हैं, 325 भी करते हैं, India have the batting has the experience and the capability to cross over that line. And for you, Misbah, why for you New Zealand? न्यूजीलैंड बड़ी क्लिनिकल परफॉर्मेंस दे रही है. मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड यहाँ पे चांसेस हैं, उनकी बैटिंग अच्छी फॉर्म में है. अगर रन्स 300 प्लस कर देते हैं अंडर लाइट्स, जैसे हमने देखा यहाँ पे बॉल स्विंग होता है, कुड बी के ऊपर से टफ टाइम दे. इंडिया का टॉप ऑर्डर 2 विकेट्स ले लिए उन्होंने, तो दे हैव अ चांस. Okay, so that's why you. Shoaib, for you? इस वर्ल्ड कप में देखा जाए तो जब भी 2 बड़ी टीम्स खेली हैं, उन्होंने जिसने टॉस जीता उन्होंने दूसरे को बैटिंग कराई और वो जीते नहीं हैं. ये आया मेरे दिमाग में, लेकिन फिर मैंने देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने भी पहले बैटिंग करके इंडिया को वो मैच फंसा, लेकिन वो फिर भी चेस कर गए. चेजिंग में इन दिस वर्ल्ड कप इंडिया डील्स विद प्रेशर द बेस्ट. दिस इज व्हाई. No question about that. अजय तक अजय तक. मोइन भाई, आपके लिए what are your thoughts on this? देखिए, एक तो थोड़ा सा ऑब्वियस होता है टॉस के ऊपर, जब आप टीम स्ट्रेंथ देखते हैं, जो चेंजेस देखिए उसमें सूर्य कुमार यादव को टीम में लेके आए, इट मीन्स दे आर स्टिल डिपेंडिंग ऑन देयर बैटिंग, ऑल्दो दे आर इन इमेंस फॉर्म, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एक ऐड ऑन करना, तो इट मीन्स कि वो ज़्यादा चांसेस उनको बजाय नज़र आ रहे हैं कि चेजिंग में उनके लिए ईजी होगा. दैट्स व्हाई I also went with them. All right, gentlemen, we will see you on the other side of the game. We will see you later in the evening. Have a good one.